Welcome to the next lecture of the Modern Indian History series. ठीक है, we are doing it for the civil service examination and specifically for the prelims part. ठीक है, and it's going to help you in number of examinations which are having modern Indian history as one of the subjects. And we are doing it using the active recall technique, the flashcards, and we are going to 100% complete the modern Indian history and the other subjects as well. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? What we are going to talk about? Our topic is British, and we are going to talk about the Sikh Empire. We are going to see how the British expanded in the Punjab region, which is made up of the 5 rivers, and how the British consolidated their power in that particular region, and how all this led to the end of the Sikh Empire. Right, we are going to do these particular flashcards where we are going to see everything about the Sikh consolidation and the misformation, and we are going to see the Anglo-Sikh wars. There were 2 Anglo-Sikh wars. We are going to look at them. Okay, at the end of the session we will have our active recall, okay, exercise, active recall exercise, where you will try to consolidate your information, try to recall everything that we are studying through the lecture. I hope you are able to learn through the lecture, revise through the lecture, and recall through the lecture. ठीक है, तो you are learning at the same time, revision and then recall. These 3 are the pillars of this particular series. So if you are interested, keep watching and watch the other videos as well. ठीक है, अब नीचे ना this is the first flash card. अब यहाँ you will be given the timestamp. ठीक है, because before we move on to the flashcards, we are going to talk about the foundational brief or the background of the lecture. It could take a long, but if you have sufficient idea of the background of the topic that we are going to talk about, because we are going to talk about the foundation of Sikhism, and वहां से वो आगे पूरी की पूरी जो कंप्लीट टाइमलाइन है हम उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट आवर फ्लैश कार्ड्स बिकम ईजी. तो इफ यू हैव आइडिया अबाउट इट, डायरेक्टली स्किप टू द फ्लैश कार्ड्स यूजिंग द टाइम स्टैम्प. ठीक है, अगर ये भी याद है then directly skip to the active recall area. So it is upon you. The timestamps are provided below. Right, so let us start with the foundational brief or the background of our lecture for today, which is the British and the Sikh Empire. Now हमारे foundational brief वाले area के अंदर ना, ठीक है, this is the lecture context and background we are talking about of the British and the Sikh Empire. Now सबसे पहले इन सबको देखने से पहले ना हम एक पर्टिकुलर रीजन देखते हैं, which is the region of Punjab. I hope these backgrounds will be helping you to establish good foundation for your subject. हम देखते हैं रीजन ऑफ पंजाब. देखो आज की डेट में तो आपको पंजाब पता है, इट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यही पंजाब जैसे इंडिया के अंदर है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान एज अ प्रोविंस फॉर देम. ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट है. तो व्हाट are we talking about Punjab? We are talking about, there are five of the major tributaries of the river Indus. So we have the river Indus. ठीक है, अब ये मैं ऐसे मैप के अकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ. दीज आर फ्लोइंग लाइक दिस. ठीक है, तो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ विच इज़ मेड अप ऑफ दीज 5 मेजर रिवर्स. तो कौन कौन सी हमारे पास? वी हैव इंदस, वी हैव झेलम, आफ्टर दैट वी हैव चिनाब. राइट, अगर किसी को ये सीक्वेंस याद ना हो तो वो याद रख सकता है. वी हैव रावी, वी हैव ब्यास एंड वी हैव सतलुज. ठीक है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ऑल दीज रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बिगर इंदस रिवर विच देन गोज इनटू द अरेबियन सी. ये तो होगा बिल्कुल फाउंडेशन वगैरह की हमने बात कर ली इस चीज़ के बारे में. दिस इज़ द रीजन ऑफ पंजाब. नाउ अब जो ये रीजन ऑफ पंजाब है, ठीक है, अब आपने देख लिया रीजन ऑफ पंजाब. तो जब भी हम पंजाब वर्ड की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एरियाज रिलेटेड विद दीज पर्टिकुलर रिवर्स. ये बात तो हमारे क्लियर हो गई. नेक्स्ट हम चलते हैं, हम अपने इसको शुरू करेंगे. जो टॉपिक है, हम इस रीजन की बात करेंगे फ्रॉम 1206 टू 1526.
ठीक है, मैं आपको साथ साथ रिमाइंड भी कराता रहूंगा सो दैट इफ यू रिमेंबर इट और नॉट। याद है ये वाला किस चीज़ का पीरियड है? इफ आई रिटन ओवर हेयर 1206 to 1526, what is this period about? Yes, if you have guessed it correct, then it's good. This was the period of the Delhi सल्तनत, राइट? ये पीरियड किसका है? दिल्ली सल्तनत का। पंजाब का रीजन हो गया। अब दिल्ली सल्तनत का और पंजाब का क्या रिलेशन है? दिल्ली सल्तनत ऊपर नॉर्थ वाले एरियाज में थी, वो इंडिया में साउथ वाले एरियाज में हमने पिछले लेक्चर्स में बात करा था, उसमें से बहमनी सल्तनत वगैरह भी उसमें से निकली थी। तो दिस वाज मेजरली इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो पंजाब वाला जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर रीजन, इसका क्या रिलेशन था विद द दिल्ली सल्तनत? दैट they treated Punjab as what? As one of the strategic frontier। तो उनके लिए तो वो क्या था? इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर, एक बॉर्डर एरिया था जिसको वो बहुत स्ट्रेटेजिकली ट्रीट करते थे। नाउ व्हाई दे आर ट्रीटिंग इट स्ट्रेटेजिकली एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन ऑफ पंजाब फॉर द दिल्ली सल्तनत? ठीक है, अब पंजाब का रीजन वी विल, अब ये भी याद है ना, कैन यू रिमेंबर कि देर वर डिफरेंट डिफरेंट सल्तनत्स, देर वर डिफरेंट डायनेस्टीज विच वर देयर। इट वॉज द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजीज वर देयर, ठीक है, द तुगलक्स, द सैयद्स एंड द लोधीज। ठीक है, इस वाले पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, आफ्टर दी जो वो अपनी अपनी हाइट्स पे था कंप्लीटली। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पंजाब, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, इन दी दिल्ली सल्तनत। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। एंड स्पेसिफिकली खिलजी डायनेस्टी में भी सबसे इंपॉर्टेंट किसकी हम सुल्तान की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। एंड इफ यू कैन रिमेंबर, आई थिंक यू शुड रिमेंबर बिकॉज इस पे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आए हैं, ही वॉज फ्रॉम 1296 टू 1316। ठीक है, सो दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? अलाउद्दीन खिलजी, हु बिलोंग टू द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड में और इनके टाइम पीरियड से पहले नंबर ऑफ टाइम्स, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में द रीजन ऑफ पंजाब एंड इवन ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज टाइम इवन द एरियाज ऑफ दिल्ली, नाउ दीज एरियाज वर अंडर द इन्वेजन ऑफ द मंगोल्स। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आ गया, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर एरिया। और मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ। किस एरिया के? मंगोल्स के इस एरिया में क्या रहते थे? देयर वर नंबर ऑफ इन्वेजन्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो 13th सेंचुरी थी वो लगभग लगभग मंगोल्स के मल्टीपल इन्वेजन्स होते रहते थे इन एरियाज में। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी दे इवन सीज द कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एज वेल। ठीक है, तो वो दिल्ली रीजन तक भी आ चुके थे। फाइन, सो ऐसे हुए थे। खिलजी के टाइम पे तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, बट बिफोर हिज टाइम पीरियड एज वेल। ठीक है, उनके टाइम पीरियड से जैसे पहले जलालुद्दीन, ड्यूरिंग हिज पर्टिकुलर पीरियड हु वाज जस्ट बिफोर अलाउद्दीन खिलजी 1290 टू 96, इस पीरियड में भी इसके मंगोल्स के इन्वेजन थे और इनके पीरियड से पहले भी मंगोल के नंबर ऑफ इन्वेजन्स हो चुके थे। ठीक है, अर्लियर दे वर एट अ स्मॉल स्केल, ध्यान से सुनना, अर्लियर दे वर एट अ स्मॉल स्केल, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी उनका जो स्केल है उन इन्वेजन्स का, ठीक है, वो कैसा हो गया? इट वॉज लार्ज स्केल। तो अभी तक मैंने आपको कुछ बातें क्या बताई कि एक रीजन है पंजाब का जिसमें 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस वाले रीजन को हम पंजाब बोलते हैं। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, जो उसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर डील करते थे। क्यों? क्योंकि मंगोल्स इस एरिया से ऐसे अटैक करते थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो पंजाब का एरिया खिलजी डायनेस्टी के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर था। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जलालुद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, देयर वर नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन्स। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द इन्वेजन्स इवन वेंट अप टू द सीज ऑफ द दिल्ली एज वेल। अलाउद्दीन से पहले क्या इन्वेजन्स हो चुके थे? यस, अलाउद्दीन से पहले भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इन्वेजन्स हो चुके थे, तो इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है।
ठीक है, बट आई डू फील हेयर दैट वी शुड अ लिटिल बिट टॉक अबाउट द मंगोल्स एज वेल। ठीक है, मंगोल्स के बारे में थोड़ी बहुते हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दे इन्वेडेड द रीजन ऑफ दिल्ली एज वेल, और उन्होंने पंजाब के रीजन को, डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स भी हुए थे इस एरिया में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स भी हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द बैटल ऑफ किली, ठीक है, दिस वाज इन द पीरियड ऑफ 1299। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर पीरियड का बैटल था। अच्छा, दिल्ली का बैटल, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारे पास हुआ था 1303 वाले पीरियड में। ठीक है, ये दो मेजर बैटल्स हैं जो शायद आप याद रख सकते हो रिगार्डिंग द मंगोल इन्वेजन। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा मंगोल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन यू विल हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट दिस मंगोल इन्वेजन इज। ये है क्या? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आज इसकी अगर हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेंगे तो कल हमारे लिए इजी होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट द मंगोल्स अ लिटिल बिट। ठीक है, मंगोल्स नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ मंगोलिया। ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ मंगोलिया। ठीक है, ऊपर क्या है? इट इज़ रशिया, नीचे ये चाइना वाला पार्ट हो गया, एंड इन बिटवीन लाइज दिस पर्टिकुलर एरिया। आज के करंट के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया हो गया फ्रॉम वेयर दे वर कमिंग। नाउ देर वर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में देर वर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, और उन ट्राइब्स को यूनिफाइड करके एक बड़ी आर्मी के अंदर कन्वर्ट करना, दिस वॉज द वर्क ऑफ गेंजिस खान। ठीक है, चंगेज खान, जेंजिस खान, वट एवर, तो ही इज हैविंग नंबर ऑफ नेम्स। नाउ इनका टाइम पीरियड ना, जेंगिस खान का याद रखना बहुत ईजी है, बिकॉज ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई थी। तो एक तरफ इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, द स्लेव डायनेस्टी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, एंड दूसरी तरफ मंगोलिया के एरिया में जेंजिस खान और द चिंगेज खान इज एस्टेब्लिशिंग हिज अथॉरिटी। ठीक है, नाउ ही इज रूलिंग द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके अंडर जितने जितने कमांडर्स होते हैं ना, उन सभी कमांडर्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वो सेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमारे लिए ना एक मतलब इनकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो उसके बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इनका एम्पायर इतना लार्ज क्यों था, बिकॉज अगर मैं देखो इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टार एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज। ठीक है, इधर मैं ईस्ट में इस एरिया की बात करूँ, डू यू नो व्हाट दीज एरियाज आर? दिस फर्स्ट स्टार दैट आई टॉक्ड अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस वॉज द एरिया ऑफ द कार्पेथियन माउंटेन्स। कौन सी माउंटेन्स है? कार्पेथियन माउंटेन्स। ठीक है, तो रोमेनिया, यूक्रेन वगैरह का जो एरिया है, रोमेनिया तक, ठीक है, उस एरिया में ये माउंटेन्स है। कौन सी? कार्पेथियन माउंटेन्स। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द एरिया ऑफ ईस्ट यूरोप। कौन सा है? ईस्ट यूरोप का एरिया। ये जो सेकंड स्टार है, दिस वन, ठीक है, ये वाला तो हमने देख लिया, दिस इज द कार्पेथियन माउंटेन्स, रोमेनिया, ईस्ट यूरोप। ये वाला जो स्टार है, जो ये वाला जो एरिया है, दिस वॉज द एरिया ऑफ द लेवांत। लेवंथ का एरिया याद है? इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट ज्योग्राफी और बाकी सब रीजन्स के बारे में, ठीक है, इसको आप मिडल ईस्ट के नाम से भी जानते हो, द एरिया ऑफ मिडल ईस्ट। ठीक है, इसराइल वगैरह का जो एरिया वहाँ तक। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस वॉज द सी ऑफ जापान। ठीक है, एक तरफ, इस तरफ क्या है? जापान है, इस तरफ चाइना है, बीच में जो एरिया है दैट इज द सी ऑफ जापान। तो कैन यू सी, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ एरिया ही वॉज हैविंग अंडर हिम? ठीक है, सो दिस वॉज द एरिया ऑफ चेंगिस खान। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि यार ये ईस्ट यूरोप तक चला गया, मिडल ईस्ट तक चला गया, ठीक है, ईरान वगैरह सब कैप्चर हो गया, और इधर जापान की सी तक चला गया, एंड दिस इज such a big area. Why this area was not towards the Indian subcontinent? है ना,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मंगोल्स की हम कोई भी हिस्ट्री वगैरह कुछ भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ना उसको पढ़ते हैं. Now, why this was happening? That they were not able to come to the areas of India. What was the reason कि they were not able to establish control in the areas of India? थोड़े से reason देख लें. Of course, they will be helping you someday to answer some of the questions that you may get. ठीक है. तो क्या रीजंस थे कि उन्होंने इंडिया में इन्वेड नहीं करा? सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो था द एरियाज ऑफ हिमालयाज. ठीक है. उसमें चाहे वो सुलेमान रेंजेस हों, उसमें हिंदू कुश माउंटेन्स हों, या हिमालयन की अपनी खुद की माउंटेन चेन हो, तो ये एरिया क्या करता था? दिस एरिया यूज टू एक्ट लाइक अ बैरियर. सो दिस इज द नंबर वन पॉइंट. ठीक है, जो आपको याद रखना है. सेकेंड, अब देखो ये किस एरिया से आ रहे हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम द एरियाज ऑफ मंगोल. ठीक है. अब ये एरिया जो है ना, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स का एरिया. किस कैसा एरिया है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स का. बड़े बड़े मैदान जिनमें बड़ी बड़ी घास होती है. ठीक है. द ग्रास इज देयर एंड हॉर्सेज आर द एनिमल्स विच आर यूज्ड इन दी वॉरफेयर. ठीक है. अगर मैं इंडियन एरिया की बात करूं, इंडियन एरिया वॉज द ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है. एंड वहां पर हैवी हैवी एनिमल्स का यूज होता था. मोस्टली देवर यूजिंग, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत, देवर यूजिंग एलिफेंट्स एज द एनिमल्स इन द वॉरफेयर. ठीक है. तो दैट वाज कि ये जो फोर्स आई थी, जंगीज खान की जो फोर्स थी, ये किस एरिया से आ रही थी? देवर कमिंग फ्रॉम ए एरियाज ऑफ द स्टेपी ग्रासलैंड. तो हम इसको स्टेपी, हम इसको बोल सकते हैं दैट इट वॉज अ स्टेपी वॉरफेयर अप्रोच रखते थे. जो ग्रासलैंड्स की अप्रोच होती है जहां पर हॉर्सेस ज़्यादा काम करते हैं. ठीक है. तो स्टेपी वॉरफेयर में हॉर्सेस आर मोस्टली यूज. वो इंडिया में तो चलने नहीं थे. ठीक है. दैट वॉज द नेक्स्ट थिंग वॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था इस पर्टिकुलर चीज का, वो था सिल्क रोड के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का. नाउ सिल्क रोड एशिया से यूरोप में जाने वाला. ठीक है. इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. ठीक है. जो इस ट्रेड रूट पर, यानी जो सिल्क रोड पर कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसका ट्रेड के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा. और क्योंकि इंडिया इसके पाथ में नहीं आता था, ठीक है, तो दैट्स वाई इंडिया वॉज नॉट इन द ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ द मंगोल्स. ठीक है. वो इतना ज्यादा नहीं था. नेक्स्ट, अब ये इतनी बड़ी आर्मी होती थी मंगोल्स की, विच वॉज अ वेरी हैवी आर्मी. अब उस हैवी आर्मी के साथ, एक एक पर्सन के साथ, देर वर नंबर 2-3 हॉर्सेज वर देयर. उन हॉर्सेज को ग्रासेस वगैरह चाहिए जो इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में इतनी नहीं मिलेगी. तो क्या आएगी? वॉरफेयर में एक वर्ड होता है लॉजिस्टिक्स. ठीक है. तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो वॉर सपोर्टिंग मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स. तो उस लॉजिस्टिक्स को आप पूरा नहीं कर सकते. ठीक है. सो कैन यू सी देर आर नंबर ऑफ रीजंस कि वाई द मंगोल्स वर नॉट इन्वेडिंग इंडिया, एंड द सिल्क रोड, इंडिया नॉट बीइंग प्रेजेंट ऑन द सिल्क रोड वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. राइट. अब ये तो होगी मंगोल्स की एक स्टार्टिंग की स्टोरी जो मैंने आपको बताई, विच वॉज रिगार्डिंग द जेंगिस खान एंड उनका कैसे कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ इस पूरे के पूरे एरिया में. ठीक है. बट वी हैव ऑल्सो सीन कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत वाले एरिया में भी, अब जो मंगोल्स थे अंडर जेंगिस खान, ठीक है, अब वो ये समझ के चलो कि देर वर नथिंग आफ्टर जेंगिस खान, देर वर नंबर ऑफ, वी कैन से, सक्सेसर वॉर्स विच वर देयर. ठीक है. उसके बाद कौन रूल करेगा, कैसे रूल होगा, आगे कैसे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि जेंगिस खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद आगे कैसे हम मूव करेंगे. ठीक है. तो क्या आएगा? सबसे बड़ी चीज़ आएगी दैट पूरे मंगोल का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डिवीजन इन द पीरियड ऑफ 1294, तो पूरा का पूरा जो मंगोल एम्पायर की अभी हमने बात की, ठीक है, पूरे के पूरे एम्पायर की, वो मेजरली 4 बड़े बड़े एरियाज में डिवाइड हो गया. ठीक है. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर एरियाज. कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एरियाज? ठीक है. अब ये कौन कौन से क्या एरियाज थे और इसमें क्या थे? जैसे इफ आई टॉक अबाउट कि जो ईस्ट यूरोप की तरफ जो एरिया था, दैट वॉज नोन एज द गोल्डन होड. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ
ईरान, ठीक है, या फिर यू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ लेवांत, उस पर्टिकुलर एरिया में, ये वाला तो कौन सा हो गया ऊपर वाला, दिस वन इज दी, साथ साथ इसको डिस्कस करते चलो, इट वॉज द एरिया ऑफ ईस्ट यूरोप। ईरान और लेवांत वाले एरिया में अगर हम बात करें, इट वॉज एल खांत, ठीक है, जैसे सल्तनत होती है ना वैसे इनकी खानत होती है, तो इल खानत, तो दिस वॉज द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर मैं इंडिया के, ठीक है, सपोज, तो ये इंडिया की मेजर माउंटेन चेन्स होगी। अब इन चेन से जो ये ऊपर वाला जितना भी एरिया होगा, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वॉज कंट्रोल्ड बाय द, दिस वॉज कंट्रोल्ड बाय द चैगताई, ठीक है, खानित, ठीक है, तो चैगताई खानित है। और जो बचा हुआ जो चाइना वाला जो एरिया था जो आपने देखा था, आई ड्रू इट एज नंबर 1 ओवर हेयर, उस एरिया में इट वॉज द युआन्स हु वर देयर, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो कैसे पूरा का पूरा जो मंगोल्स का जो पूरा का पूरा एम्पायर है, मंगोल्स का पूरा जो एम्पायर है, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स, ठीक है। अब वो वीक तो होना ही था। अब इंडिया में जितने भी अब जो रेड्स होंगी या जो इन्वेजन्स होंगे ना, दैट विल बी, सबसे नियरेस्ट हमारे यहाँ पर कौन सा आएगा, चैगताई खानित, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, खिलजीज वगैरह के साथ ये फाइट करेंगे, ये इन्वेड करेंगे दिल्ली पर ही, एंड यही सारी की सारी चीज़ों को फाइट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आई गिवन यू इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मंगोल्स, कि कैसे मंगोल्स एस्टेब्लिश होते हैं, कैसे जेंजिस खान आता है वो सभी को, सारे के सारे ट्राइब्स को यूनाइट करता है, एंड दिस ही एज अ रूलर, ठीक है, एक्सपेंड्स हिज एरियाज टुवर्ड्स द कारपेथियन सी, द लेवांत एंड द सी ऑफ जापान, ठीक है। इंडिया में इनके ना आने के क्या मल्टीपल रीजंस थे, द हिमालयाज, द स्टेपी वॉरफेयर, द सिल्क रोड एंड द हॉर्सेस और लॉजिस्टिक्स, उनसे रिलेटेड वॉर लॉजिस्टिक्स, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस थे। उसके बाद कैसे डिफरेंट डिफरेंट सक्सेसर वॉर्स होते हैं, मंगोल का जो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में जो एम्पायर होता है, इट स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, और वो होता है डिवाइड, एंड दैट डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गोल्डन होर्ड, ठीक है, द इल्खानित, द चैगताई खानित एंड द युआन्स, ठीक है। और चैगताई खानित वॉज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसमें सेंट्रल एशिया का एरिया आ जाएगा, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का रीजन आ जाएगा, एंड यहाँ पर प्रेजेंट है दिल्ली सल्तनत, और ये एरिया है पंजाब, जो हमारा कोर टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ दिस पंजाब इज बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड द मंगोल्स, ठीक है, ओके। अब हमने किस एरिया से इस चीज़ को शुरू करा था, हम इस एरिया से शुरू कर रहे थे, और हमने पंजाब का एरिया बेसिकली देख लिया। नाउ दिस एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, दिस इज अबाउट पंजाब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इस चीज़ को समझते हैं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, और अब हम समझेंगे कि जो पंजाब का जो एरिया है, द रीजन ऑफ पंजाब, वेयर इज दिस सिक्स कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब ये सिख एज अ रिलीजन कैसे एस्टेब्लिश होता है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो पंजाब के एरिया में सारा का सारा कैसे हो, हम अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन को ना इस चीज में देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, सिखिज्म अंडर दी गुरुज, ठीक है, जो 10 गुरुज हैं ह्यूमन फॉर्म में, हम उनके बारे में बात करेंगे। सो हम अपनी स्टोरी की जो टाइमलाइन है ना उसको रख सकते हैं 1469 से 1708। अब सबसे पहले तो ना इसी चीज़ को अपने दिमाग में एक बार एस्टेब्लिश कर लो, इस टाइमलाइन को। 1469 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं, दिस इज फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। वट एवर आई एम टेलिंग यू इन दीज वीडियोज विल बी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स, मे बी फॉर योर मेंस, समवेयर इन द इंटरव्यू, और किसी ना किसी वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके यूज आएंगी, ठीक है। तो 1469 एक ईयर याद रखोगे, 1708 आप दूसरा ईयर याद रखो। दिस वॉज द पीरियड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिखिज्म अंडर द गुरुज, ठीक है। वाई वी हैव टू रिमेंबर 1469, ठीक है, किसको पता है कि वाई वी आर रिमेंबरिंग 1469 एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीरियड्स, बिकॉज दिस वॉज द birth year of
गुरु नानक साहब, ठीक है। ही वॉज दी व्हाट, ही वॉज द फाउंडर, ठीक है, ऑफ सिखिज्म। क्लियर है भाई यहां तक कि 1469 हमको, वैसे भी हमको आर्ट एंड कल्चर में इसको याद करना है, तो 1469 वॉज द पीरियड व्हेन गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म, ठीक है। कि जो हिंदूज वगैरह का जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट में ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। ही वॉज टूवर्ड्स द भक्ति थिंग एंड देर वॉज अ, ही फाउंडेड हिज ओन रिलीजन विच वॉज सिखिज्म। तो इट वॉज 1469 इज द बर्थ ईयर ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट गुरु। फाइन, तो ये हमने अपनी पर्टिकुलर एस्टेब्लिश कर लिया। फाइन, 1708, नाउ व्हाई वी हैव टू लुक एट 1708। नाउ दिस इज द ईयर 1708 जब, अब देखो यू वेरी वेल नो दैट देयर वर 10 गुरुज, ठीक है, 10 ह्यूमन गुरुज, ठीक है। इन सिखिज्म देर आर 10 ह्यूमन गुरुज। उसके बाद 10th गुरु ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब को 1708 में दे एस्टेब्लिश्ड इट एज व्हाट, एज द लिविंग गुरु, ठीक है। इसको क्या एस्टेब्लिश कर दिया, एज द लिविंग गुरु। अब लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब, इट इज द होली बुक, इट इज द होली बुक। नाउ दिस बुक इज कंसिडर्ड एज द लिविंग गुरु, राइट। एंड अब ये कॉन्टिन्यू में है, ठीक है। तो उसके बाद ह्यूमन गुरुज की जगह द बुक बिकेम द लिविंग गुरु। तो इस चीज़ को भी हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं, और सो दैट यू कैन रिमेंबर इट कि दैट द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो दिस बिकेम, दिस होली स्क्रिप्चर बिकेम एज द लिविंग गुरु आफ्टर द 10th गुरु, ठीक है। तो ये सब सारी की सारी चीजें हुई। सो कैन यू सी व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन। 1469 द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव, 1708, अब इसके बीच में देर विल बी 10 गुरुज हु विल बी देयर, ठीक है। और सिखिज्म जो है धीरे 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 अपना पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टेब्लिश करता चला जाएगा, एंड सिखिज्म विल बी डेवलप्ड कंप्लीटली। एंड फाइनली 1708 व्हेन द होली स्क्रिप्चर द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड एज द लिविंग गुरु, एंड वो उसके बाद से वो कंटिन्यू आगे होते चले गए। वी विल सी कि कैसे जो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, अब ये कैसे स्टार्टिंग में ही वॉज ए रिलीजियस, एंड आप ये दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ोगे जो रिफॉर्म चैप्टर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। ही वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। अब ये तो हो गया रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर वाली साइड, बट हम तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइड एज वेल। तो अगर हम देखें कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिक्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें, तो व्हाट ईयर वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट द ईयर एज 1606, ठीक है। अब देखो अगेन यू हैव टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर, बहुत सारी यार डेट्स इसलिए याद करते हैं क्योंकि डेट से ही स्टोरी बनती है। इससे पहले क्या हुआ, ठीक है, इससे पहले तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इट वॉज द पीरियड ऑफ अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो वो पीरियड क्या था, इफ यू रिमेंबर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टिल 1605। तो अकबर तो ही वॉज वन ऑफ द सेकुलर पर्सन, कि वो उन चीज़ों में बिलीव करते थे, ठीक है, रिलीजियस हार्मनी में बिलीव करते थे। बट उनके बाद क्या, ठीक है, उनके बाद द मुगल रूलर्स हु केम, उनका क्या, इट वॉज, मान लो, जहांगीर, ठीक है, जो उनके बाद आता है आफ्टर अकबर। नाउ ही मार्टियर्ड द 5th गुरु, ठीक है, जहांगीर मार्टियर्ड द 5th गुरु। हु वॉज द 5th गुरु, गुरु अर्जन देव, ठीक है, ही मार्टियर्ड हिम, ठीक है। अब उनके क्या पीछे रीजंस रहे होंगे, वी वोंट बी गोइंग इनटू दैट, बट यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ जहांगीर, ठीक है, इन 1606 की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट 1606, द नेक्स्ट ईयर आफ्टर अकबर डाइड, ठीक है। जहांगीर मार्टियर्स दी 5th गुरु, गुरु अर्जुन देव, राइट। तो हमने ये वाली चीज देख ली। नाउ बिफोर ही डाइड ही सेड
कि द सिक्स हैव टू टेक अप आर्म्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, सिक्स हैव टू टेक अप आर्म्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। हमें पूछना है ना, हमें अपने पूरे टॉपिक को यार कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, एक पूरे बड़े ब्रिटिश एम्पायर के साथ फाइट करता है, दिमाग में नहीं आता कि भाई ये रिलीजियस जो एक ग्रुप जो बना था वो कैसे एक मिलिट्री ग्रुप एक पूरे पूरे एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना भाई दिमाग में। ठीक है, तो कैसे जहांगीर ने 1606 में ही मार्टियर्ड द गुरु अर्जुन देव। ठीक है, एंड ही बिफोर डाइंग ही सेड दैट द सिक्स हैव टू टेक अप आर्म्स फॉर व्हाट, फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, और वो जो टिरनी जो चल रही है मुगल्स की, ठीक है, उस टिरनी के अगेंस्ट हमें आर्म्स क्या करने, पिकअप करने। अब वो धीरे धीरे वो चीजें चल ही रही थी, थिंग्स वर गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर अगेन एक और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है विच इज इन 1675। दिस टाइम औरंगजेब, ठीक है, दिस टाइम औरंगजेब नाउ ही मार्टियर्स गुरु तेज बहादुर। ठीक है, ही मार्टियर्स गुरु तेज बहादुर। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। तो अब ये चीजें हो रही हैं, क्या कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने गुरुज को ऐसे, हाँ ठीक है, दीज मार्टियर्स दे वर बिकमिंग मार्टियर्स, ठीक है, ऐसे होने देगा, एंड अगेंस्ट दैट टू दी क्रूअल मुगल्स। ठीक है, तो नाउ द सिक्स हैव टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द मुगल्स एंड देयर टिरेनी। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, दोबारा से एक बार रिवाइज करा तो 1469 में इट इज गुरु नानक देव, सिखिज्म की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में तो एज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर की तरह, बट पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू होती है 1606 से, व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। 1606 में द मार्टियर फिफ्थ गुरु अर्जुन देव, एंड आफ्टर दैट 1675 गुरु तेज बहादुर बाय औरंगजेब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हाउ दिस रिलीजियस कम्युनिटी, दिस रिलीजियस ग्रुप टुक अप आर्म्स, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है ईयर 1699। ठीक है, 1606 लिख ही देता हूं मैं, फिर याद फिर कैसे रहेगा अगर लिखूंगा नहीं तो। 1606 याद रहेगा, 1675 और 1699। चलो अब एक काम करो, ये तीनों ईयर्स को पहले तो एक साथ याद रख लो, 1606, 1675, 1699। यार या तो इनको सोल्व करके आईएएस बन जाओ या केबीसी में चले जाओ, कुछ तो करो। ठीक है, तो ये 3 इयर्स हो गए, राइट। दिस वॉज द फिफ्थ गुरु वॉज मार्टियर्ड, ये हम पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। 1699 में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन 1699, देयर इज गुरु गोविंद सिंह। ठीक है भाई, यू आर देयर विद मी, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ वट ही गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं कि जो भी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो सिखिज्म में फॉलो की जा रही हैं, ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, सबसे पहले तो उन सभी प्रैक्टिस को फॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, दोज प्रैक्टिसेस आर फॉर्मलाइज्ड इन नेचर। ठीक है, वो एक अब पूरे के पूरे जो सिख नेशन है, या हम बोल सकते हैं सिक्स को, उस पूरी कम्युनिटी को वो एक रूप से मिलिटराइज्ड करते हैं। ठीक है, ही कन्वर्ट्स इट इनटू अ काइंड ऑफ अ मिलिट्री, एंड उस मिलिट्री को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द खालसा पंथ। ठीक है, व्हाट डज खालसा पंथ बेसिकली मीन्स, इट मीन्स द वॉरियर डिसाइपल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वॉरियर डिसाइपल्स। अरे ये कहाँ से आ गया, okay, so warrior disciples, now they are not just disciples of the guru, but they are warrior disciples. So this is the Khalsa Panth, which was formalized by गुरु गोविंद सिंह इन 1699। बिकॉज तुमको पता है कि मुगल्स का जो पीरियड है 1526 से 1605 तक अकबर था, तो वहाँ तक सब प्रॉपर चल रहा था। उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, एंड दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन औरंगजेब वॉज देयर। ठीक है, बिकॉज औरंगजेब विल डाई इन 1707। ठीक है, तो दिस मिलिटराइज सेक्शन विच इज द खालसा पंथ इज क्रिएटेड बाय
Guru Govind Singh. Now this religious community has taken up arms. Arms against what? They have taken up arms to oppose the Mughals. ठीक है, तो दैट इज द नंबर वन थिंग. फाइन. उसके बाद दे आर नाउ गोइंग टू फाइट द टिरेनी. ठीक है, द टिरेनी और द डेस्पोटिज्म ऑफ द मुगल्स. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज देयर. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सारा का सारा. बिकॉज इसके बाद गुरुज गोविंद सिंह हु इज द 10th गुरु, ठीक है, वो अपने बाद किस चीज को? द लिविंग स्क्रिप्चर. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि गुरु ग्रंथ साहिब द लिविंग स्क्रिप्चर विल बी क्रिएटेड. ठीक है, अब हमारा जो स्टार्टिंग में जो पूरा का पूरा पीरियड था 1469 टू 17 से, बीच में हमने 1699 का भी पीरियड देख लिया व्हेन गुरु गोविंद सिंह क्रिएट्स दिस पर्टिकुलर मिलिटराइज सेक्शन ऑफ द सिक्स विच इज द खालसा पंथ विच इज क्रिएटेड. ठीक है, ओके. गुरु गोविंद सिंह जी ही passes away and now comes into the picture. He is बंदा सिंह बहादुर. देखो यार, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, कि शायद ना तुमको थोड़ा सा अलग ना लगे, वो इसलिए बता रहा हूँ. आपके पास जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है या आपके पास किसी चीज़ का एक प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, तो जब भी आप किसी नई इन्फॉर्मेशन को देखते हो ना, आप उसको ईजिली कैप्चर कर सकते हो. लेकिन अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. तो इसलिए आपकी कभी जो नॉलेज है ना, वो फिर स्टॉप हो जाती है, वो बढ़ती ही नहीं है. बिकॉज ना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ना ही आगे वाली इंफॉर्मेशन आ पाती है. सो वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इन दीज बैकग्राउंड वीडियोज और द फाउंडेशनल ब्रीफ्स, ठीक है, वो सब इसलिए ताकि आपका जो जो बेसिक्स है ना, वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो सके. ठीक है, अब कौन आ गया? बंदा सिंह बहादुर. मिलिटराइज्ड फॉर्म में द सिक्स हैव कन्वर्टेड इनटू द मिलिटराइज्ड फॉर्म. अब बंदा सिंह बहादुर इज फाइटिंग द मुगल्स. ठीक है, ही इज फाइटिंग द मुगल्स. नाउ हु इज बंदा सिंह बहादुर? कंसिडर हिम एज वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स. ठीक है, नाउ ही इज फाइटिंग द मुगल्स. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ही एज वेल, ही कहाँ पर करें इस चीज़ को? यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं, चाहे कितना ही वी आर टेकिंग इट, बट वी विल डू इट. ओके, एक बैटल होता है, बैटल को नाम, अगर इफ़ यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द बैटल, इट वॉज द बैटल ऑफ द गुरदास नांगल. ठीक है, ये पंजाब के रीजन में ही है, द बैटल ऑफ गुरदास नांगल. अब इस बैटल के अंदर बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर हु इज अ मिलिट्री कमांडर, ही इज कमिंग आफ्टर गुरु गोविंद सिंह. ठीक है, अब वो ही इज फाइटिंग द मुगल्स, वो कैप्चर हो जाते हैं मुगल्स के. वो गुरदास नांगल का जो बैटल है 1715 का, वो लॉस्ट हो जाता है, एंड 1716 ही इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, एंड ये पीरियड किसका चल रहा है? इफ़ यू हैव द मुगल हिस्ट्री इन योर माइंड, ये पीरियड किसका चल रहा है? चल, मैंने ये इतना लिख दिया, बाकी का सोच के बताओ. इट वॉज फारुखशियार. ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फारुखशियार, मुगल रूलर फारुखशियार, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर इज एग्जीक्यूटेड इन 1716. सो दिस इज, अब देखो कि यहां तो मिलिटराइज्ड फॉर्म हो चुकी है. द सिक्स हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू द खालसा पंथ और द वॉरियर डिसाइपल्स. ठीक है, मुगल्स के अगेंस्ट फाइटिंग भी शुरू हो गई, और जो मेजर कमांडर था, ही इज कॉट आफ्टर द बैटल ऑफ गुरदास नांगल, ही इज एग्जीक्यूटेड इन 1716. अब ना, अब क्या चीज होती है? द मुगल्स स्टार्ट द सर्च. ठीक है, दे स्टार्ट टू हंट द सिक्स. ठीक है, और वो अलग अलग जगहों पर दे स्टार्ट टू हंट द सिक्स एंड स्टार्ट किलिंग देम. ठीक है, द सिक्स हैव टू गो बेसिकली इन टू हाइडिंग. ठीक है, वो अलग अलग जगह पर दे आर फोर्स टू हाइड बिकॉज दे आर हंटेड बाय द मुगल रूलर्स. अब देखो, ये वाला जो पीरियड है ना 1716 के बाद का, ये ऐसे चलता ही रहेगा अंडर डिफरेंट डिफरेंट मुगल्स. सम डे दे विल हैव टू कम अप ऑन द टर्म्स बिटवीन, जो एक तरफ सिक्स हैं, ठीक है,
एंड दूसरी तरफ वी हैव दी मुगल्स. दे हैव टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर फाइटिंग. एंड ये कुछ टाइम तक तो ये फाइटिंग चलती है, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, आई राइट ओवर हेयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1733 टू 1735, याद रख सकते हो इस पर्टिकुलर पीरियड का. ठीक है, ट्रूस वगैरह एस्टेब्लिश होता था. दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रूस विच इज एस्टेब्लिश. ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? द ट्रूस पीरियड. ईयर को बस वैसे नॉर्मली ध्यान में रख लेना. अब मुगल्स क्या करेंगे ना, मुगल्स के पास तो पूरा का पूरा जो एरिया है जो उन्होंने कैप्चर कर रखा है. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ मुगल्स. तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एरिया को नवाब को देते हैं एज अ जागीर. ठीक है, कि आप एक काम करिए, यू आर अ वॉरियर कम्युनिटी, यू डोंट फाइट अगेंस्ट अस. ठीक है, आप जागीर वाला एरिया ले लीजिए. ठीक है, यू एक्ट एज द नवाब इन दैट पर्टिकुलर एरिया, रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए एंड यू कैन सेटल देयर एज वेल. ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द नवाब. ही वॉज, अब ये अपने फ्लैश कार्ड्स में भी आएगा बाद में. ठीक है, ही वॉज कपूर सिंह. ठीक है, इनको तीन परगनास थे उस एरिया में. हम परगनास के नाम वगैरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो तीन परगना थे, उनकी इनको जागीर मिल जाती है एंड ही इज मेड दी नवाब. तो कौन बन गए? नवाब कपूर सिंह. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब वो नवाब हैं, अब वो धीरे धीरे ही विल ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट डिफरेंट फाइटिंग ग्रुप्स ऑफ द सिक्स. ठीक है, जो सिक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फाइटिंग ग्रुप्स है ना, तो कपूर सिंह विल ट्राई टू यूनाइट ऑल ऑफ देम. ठीक है, अब कपूर सिंह बेसिकली क्या करते हैं, जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फाइटिंग ग्रुप्स होते हैं इनको बोलते हैं जत्थास. ठीक है, अब ये इन जत्थास को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक ग्रुप ये बनाते हैं विच इज द बुड्ढा दल. ठीक है, एंड सेकंड होता है तरुणा दल. ठीक है, इन दोनों को अब किसने डेवलप करे ये? दीज आर डेवलप्ड बाय नवाब कपूर सिंह. ठीक है, वो अंडर उसके हैं. फाइन, तो एक क्या डेवलप करी? बुड्ढा दल डेवलप करी कपूर सिंह ने, नवाब कपूर सिंह ने. एक तरुणा दल डेवलप करी. नाउ एज यू कैन सी इन द नेम्स, दीज आर दोज वेटरन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड सोल्जर्स. ठीक है, एन लिखना है भाई. ठीक है, these are those old people who are in this particular group and these are the young blood people. ठीक है, so these are the youngsters who are in the Taruna Dal. So can you see now how Nawab Kapoor Singh has created the two groups in the Jathas. ठीक है, अब उन्होंने कर दिया. अब क्या तुम ये टाइम पीरियड देख पा रहे हो? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड लीडिंग अप टू? ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलप होगा. कैन यू सी विच ईयर विल कम? देखो, पुराने लेक्चर्स अगर देखते हुए आ रहे हो ना तो इतना इजी लग रहा होगा आई थिंक कुछ को तो. ठीक है, 1739 किसका इन्वेजन था? इट वॉज द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह. राइट, उसके बाद 1748 अफगानिस्तान में कौन है? इट इज अहमद शाह अब्दाली और दुरानी. ठीक है, कुछ भी बोल सकते, दुरानी एम्पायर था तो वी कैन कॉल इट दुरानी एज वेल. तो 1739 1748 ये किसके साथ फाइट कर रहे हैं? दे आर फाइटिंग दी मुगल्स. दे आर फाइटिंग दी मुगल्स. ठीक है, मराठाज. ओके, दे आर फाइटिंग दिस. और बीच में कौन सा एरिया है? ठीक है, बीच में इज द रीजन ऑफ पंजाब. ठीक है, जिन रीजन्स में ये प्रेजेंट है. नाउ दे मस्ट बी थिंकिंग कि यार एक तरफ से हमारे ऊपर इन्वेजन हो रहा है. ठीक है, और इधर मुगल्स हैं जिनसे हमको आज नहीं तो कल वी हैव टू टेक द पर्टिकुलर रिवेंज. तो इधर से कभी नादिर शाह का नंबर आ रहा है, कभी अहमद शाह अब्दाली का नंबर आ रहा है. तो हमें आपस में क्या होना होगा? हमें आपस में यूनिफाइड होना होगा. ठीक है, तो जितने जितने भी एरियाज हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, हमको उन सबको यूनाइट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू क्रिएट अ यूनिफाइड फोर्स. हमें क्या क्रिएट करनी है? हमें एक यूनिफाइड फोर्स क्रिएट करनी है. तो इन इन्वेजन्स की वजह से स्टोरी कनेक्ट हो रही है ना? हेलो, स्टोरी कनेक्ट हो रही है? इन इन्वेजन्स की वजह से एक यूनिफाइड आर्मी क्रिएट की जाती है. ठीक है, एंड ये जो यूनिफाइड आर्मी होती है, ये यूनिफाइड आर्मी होती है द दल खालसा.
ठीक है, और द खालसा आर्मी। ठीक है, वाई दिस आर्मी इज बीइंग क्रिएटेड, बिकॉज इधर से मुगल अथॉरिटी वीक होती जा रही है, बाहर से इन्वेजन्स जो हैं वो इन्वेजन्स बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट द सिक्स नीड इज द दल खालसा आर्मी। ठीक है, अब ये दल खालसा आर्मी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस वाले टाइम पीरियड में भी जब ये ना नवाब कपूर सिंह का जो टाइम पीरियड था, अब खुद अंदाजे से बताओ इसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट आएंगे या इसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट आएंगे? सोच के देखो, ये किसका है? यंग ब्लड, दे आर रेडी टू फाइट। तो ये जो तरुणा दल होता है ना, इसकी जो ग्रोथ होती है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इसके रिक्रूटमेंट नंबर्स होते हैं, एंड मैसिव ग्रोथ इज सीन किसके अंदर? इन द नंबर्स ऑफ द तरुणा दल। ठीक है, अब ये तरुणा दल के जो लोग हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट जब इनकी ग्रोथ होने लग रही है, हाउ दे आर ग्रोइंग, दे आर कैप्चरिंग दे आर कैप्चरिंग न्यू एरियाज। अब वो नए नए एरियाज ना उनके अंडर में आने लग रहे हैं, किसके? तरुणा दल के। बहुत सारे एरियाज उनके अंडर में आ गए, और यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्रिएट की जाने लग रही है? एक यूनिफाइड आर्मी बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स। ठीक है, अब बहुत सारे एरियाज कैप्चर हो गए, मैनी एरियाज आर कैप्चर्ड, द आर्मी इज बीइंग यूनिफाइड, एरियाज हो गए। अब ये सभी एरियाज को एक साथ लाया जाएगा, दीज एरिया विल बी यूनिफाइड। लेकिन ये एरियाज अपने अपने उसमें रहेंगे, मतलब बेसिकली दे विल रिमेन, फुटबॉल टाइप हो गया भाई कुछ। ठीक है, अपने अपने एरियाज में रहेंगे। ठीक है, और वो उनको आर्मी को मैनेज करेंगे। नाउ अब ये जो एरियाज होते हैं ना, इनको बोलते हैं मिसल्स। इनको क्या बोला जाने लगा? मिसल्स। ठीक है, मिसल्स मतलब इक्वल्स। ठीक है, अब ये भले ही एरिया डिवाइडेड हों, बट दीज ऑल एरियाज विच आर हैविंग देयर ओन आर्मी, इनके अपने खुद के कमांडर्स हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऐसे मिसल्स बना दिए गए, एंड देयर वर 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स विच वर फॉर्म्ड। ठीक है, ये 12 मिसल्स फॉर्म होते हैं। अब समझ में आ गया कि वो मिसल्स कहाँ से फॉर्म हुए? जो पूरा का पूरा अब ये सिस्टम है, ठीक है, सिक्स क्या हो गए हैं अब? सिक्स और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा यूनाइटेड होंगे। दे आर फॉलोइंग द सिस्टम्स ऑफ गुरुमात। गुरुमात सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सिस्टम? गुरुमात सिस्टम में गुरुमात्स आर बेसिकली अ रिजोल्यूशन। ठीक है, एक रिजोल्यूशन या एक ऑर्डर। ठीक है, वो ऑर्डर पास किया जाएगा, ऑर्डर, और यू कैन से इट इज द एडवाइस ऑफ गुरुज। इट इज द एडवाइस ऑफ द गुरु। तो गुरुमाता सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गुरु माता विच आर द रिजोल्यूशंस आर पास्ट। ठीक है, अब वो रिजोल्यूशंस सभी सिख पीपल के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, दैट इज हाउ दे वर यूनिफाइंग एवरीथिंग। तो गुरुमात सिस्टम वो करा जाता है। इनकी हर साल में 2 बार, ठीक है, मीटिंग्स भी होती हैं। ठीक है, जिनको हम शरबत खालसा बोलते हैं, शरबत खालसा। ठीक है, शरबत खालसा वॉज द बाय एनुअल द बाय एनुअल असेंबलीज। ठीक है, जहां पर सभी सिक्स जो हैं वो आ जाते थे। ठीक है, वो आ गए। अब यहाँ बैठ के वो एक साथ प्रेयर भी कर रहे हैं, एंड दे आर पासिंग ऑर्डर्स एज अ यूनाइटेड सिस्टम। तो ये एक असेंबली की तरह, आज की जैसे पार्लियामेंट होगी ना, सेशंस होते हैं, वैसे ही सरबत खालसा का सिस्टम था। जो रेजोल्यूशंस वो पास करते थे, देवर द रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरुमा। ठीक है, अब ये सारा का सारा सिस्टम चलने लग रहा है। आर्मी इज यूनाइटेड विच इज द दल खालसा। पूरा का पूरा एरिया जो तरुणा दल वगैरह इन सब ने कैप्चर करा था, उनको एज इक्वल्स मिसल्स में डिवाइड कर देते हैं। और ऐसे कितने मिसल्स फॉर्म होते हैं? देर आर 12 सच मिसल्स विच आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये सिस्टम इनसे कौन था? हु वॉज लीडिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम? ही वॉज कपूर सिंह हु वॉज लीडिंग द सिस्टम। ठीक है, यहां पर मिसल्स फॉर्म हो चुके हैं, एंड इन मिसल्स की जो कमांड होती है, ठीक है, द कमांड इज गिवन द सुप्रीम कमांडर ऑफ दिस यूनिफाइड आर्मी, ठीक है, विच इज द दल खालसा। दिस इज गिवन टू जस्सा सिंह
Ahluwalia. Okay, so he is now the supreme commander after द कपूर सिंह पीरियड. ठीक है, मिसल्स फॉर्म हो गए. मिसल्स क्या बताया? दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, दे विल हैव देयर ओन आर्मी. ठीक है, इस एक मिसल को, जो मिसल का जो लीडर होगा, वो लीडर कौन होगा? मिसलदार. क्या बोलेंगे उसको? मिसलदार. जो लीडर होगा उस पर्टिकुलर. ऐसे कितने मिसल्स थे? देर वर 12 सच मिसल्स विच वर प्रेजेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि अब धीरे धीरे मिसल्स बन चुके हैं. नाउ इन 12 मिसल्स के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर मिसल्स की बात करेंगे जो हमारे टॉपिक से डायरेक्ट हमको कनेक्शन देगा. दैट इज द शुक्र चकिया मिसल. कौन सा मिसल है? शुक्र चकिया मिसल. ठीक है, अब इसके मिसलदार और द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर शुक्र चकिया मिसल वॉज महासिंह. कौन थे इसके लीडर? ही वॉज महासिंह. ठीक है, इजी इनफ. हमको ये वाली चीज याद हो जाएगी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द शुक्र चकिया मिसल विच इज वन ऑफ द 12 missiles which were formed after the invasions. A unified army of Dal Khalsa. Supreme commander of all the forces was जस्सा सिंह अहलूवालिया. ठीक है, और ये इनके गवर्नेंस सिस्टम की, ये किस चीज की बात करी? एक गवर्नेंस सिस्टम में गुरुमात क्या है? दीज आर द रिजोल्यूशंस और द एडवाइस ऑफ द गुरुज पास्ड फॉर द सिख पीपल, एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम. सरबत खालसा वॉज अ बाय एनुअल असेंबलीज विच वर कंडक्टेड. तो हमने गवर्नेंस सिस्टम देख लिया, हमने देख लिया हाउ दिस मिसल्स वर फॉर्म, एंड उसमें से एक इंपॉर्टेंट हमने मिसल देख लिया विच इज दिस शुक्र चकिया मिसल. उसके लीडर कौन थे? इट वॉज लेड बाय महासिंह. ठीक है, अब महासिंह जो हैं, ठीक है, अब ये इनका जो सन है, ठीक है, महासिंह के जो सन है, हु इज ही इज रंजीत सिंह. ठीक है, अब ये कौन है? रंजीत सिंह. सबसे पहले तो आप बेसिकली टाइमलाइन, अब महासिंह बेसिकली वो कर रहे हैं, वो अपने सन के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स में जा रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1792 टू 1801. ठीक है, व्हाट इज दिस ड्यू ऑफ फादर एंड सन आर फाइटिंग द डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स. ठीक है, 1792 टू 1801. ठीक है, अब एक चीज का आप ये याद रखना कि भाई भले ही ये डिफरेंट डिफरेंट हमने मिसल फॉर्म कर दिए और हमने ये भी बोल दिया कि इक्वल है, बट एज कभी से ही होता आया है इंडिया के अंदर, दीज मिसल देर वर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन दीज मिसल्स. ठीक है, तो देर वर कॉन्फ्लिक्ट्स इनके ऊपर एक दूसरे पे हो रही थी अपनी बाउंड्री को लेकर. ठीक है, कि मेरे पास क्या बाउंड्री है, मेरे पास क्या एरिया है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी फाइटिंग होती रहती थी. राइट, ये सब चीज़ें चल रही हैं. नाउ डू यू नो, वो इन्वेजन्स तो पता ही है. ठीक है, इधर कौन सा एम्पायर है? दिस इज द दुर्रानी एम्पायर, अफगानिस्तान वाले एरिया में. दिस इज द रीजन ऑफ पंजाब. यहाँ पर है शुक्र चकिया मिसल, शुक्र चक्रिय मिसल, जहाँ पर महासिंह और रंजीत सिंह they are fighting in the period of 1792 to 1801. ठीक है, अब we can write about zaman shah. ठीक है, of course he was from which empire? He was from the Durrani empire. ठीक है, तो जमन शाह के अगेंस्ट में वो फाइट करने लग रहे हैं. ठीक है, और धीरे 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 ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो उसको डिफीट भी करते हैं. ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, उनके जो इन्वेजन्स होते हैं वो उन इन्वेजन्स को भी, ठीक है, काउंटर का जो इन्वेजन्स होते हैं दुर्रानी एम्पायर के, उन इन्वेजन्स को काउंटर भी किया जाता है. फाइन, एक तो ये तो चल रही है किसके साथ? बाहर वाली पावर्स के साथ, बट दीज मिसल्स आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एज वेल. और एक जो शुक्र चकिया मिसल है, ठीक है, वो धीरे धीरे जब रंजीत सिंह के हाथ में पावर आती है, रंजीत सिंह स्टार्ट्स टू कैप्चर दी अदर मिसल्स एज वेल. ठीक है, जो 5 इंपॉर्टेंट मिसल्स होते हैं वो उनको कैप्चर करना धीरे धीरे शुरू करते हैं. ठीक है,
and in the period of 1799 रंजीत सिंह कैप्चर लाहौर। ठीक है, अब ये आप ईयर जरूर याद रखेंगे, 1799 दैट रंजीत सिंह इज कैप्चरिंग लाहौर। फाइन। वहां पर कौन सा, वहां पर भी तो मिसल होगा ना जिसको उन्होंने कैप्चर करा था। इट वॉज द भंगी मिसल विच वॉज रूलिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो उसको रिमूव कर देते हैं और लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। एंड ऐसे करते करते लाहौर को कैप्चर कर लिया, बाकियों को धीरे धीरे ही गेन्स हिज एर, इनकी खुद की टेरिटरी बन जाती है। एंड नाउ ही इज हैविंग सच अ टेरिटरी दैट इन 1801, ठीक है, ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द महाराजा एट लाहौर, एंड एट लाहौर ही इज क्राउंड। जितना भी एरिया मेरे पास है, स्पेसिफिकली जो पंजाब वाला जो रीजन है, पंजाब वाला रीजन यानी ना 5 ट्रिब्यूटरीज वाला, उस रीजन में वहाँ पर ये लाहौर को कैप्चर करके लाहौर में 1801 में अपने आप को क्राउन कर लेते हैं। एंड ही डिक्लेयर्स दैट the region which he is holding in the Punjab area, that will be known as the Sikh Empire. Getting my point? 1801। ठीक है, तो कैन यू सी what happened कि how a religious community started which was fighting the Mughals, slowly and strategically they got themselves converted into a military group। ठीक है, हाउ दैट मिलिट्री ग्रुप बीच में नवाब बन जाते हैं, मिसल्स आर फॉर्म, एंड हाउ फ्रॉम दोज मिसल्स आर यूनाइटेड एंड कैप्चर्ड एंड ब्रोट इनटू वन, एंड द सिख एम्पायर इज क्रिएटेड। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो मिसल्स थी, वो तो उस टाइम पे कॉन्फेडरेसी की तरह काम कर रही थी, एज अ ग्रुप की तरह काम कर रही थी। बट व्हाट डिड रंजीत सिंह डू? रंजीत सिंह ने क्या करा? उन सभी मिसल्स की कॉन्फेडरेसी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इनटू द सिख एम्पायर इन 1801 व्हेन ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द महाराजा। अब ये जो सिख एम्पायर उन्होंने क्रिएट करा ना, वो 1801 से 1839 तक चलेगा, टिल द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। तो दिस वॉज द टाइम पीरियड फ्रॉम 1801 टू 1839 which was under Ranjit Singh. This was the Sikh Empire. So I think now you have got everything that we started। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहे वो मंगोल्स का हो या बाकियों का हो, वी स्टार्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ पंजाब। आई एम बेसिकली रिपीटिंग माई सेल्फ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। द रीजन ऑफ पंजाब, द दिल्ली सल्तनत, how the Mongols were invading India। We discussed about everything about the Mongols। ठीक है, वो कैसे मंगोल्स अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाते हैं। द रीजन ऑफ पंजाब, हाउ द सिक्स आर फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद सिखिज्म 1469 टिल 1708 तक पूरा का पूरा जो सिखिज्म है वो डेवलप होता है अंडर इट 10 गुरुज। देन द गुरुशिप इज ट्रांसफर टू गुरु ग्रंथ साहिब, ओके, द नॉन ह्यूमन लिविंग गुरु। ठीक है, और ये रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर कम्युनिटी की पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू होती है फ्रॉम 1606 आफ्टर अकबर। ठीक है, द मार्टियरडम ऑफ गुरु अर्जन देव, गुरु तेज बहादुर, एंड फाइनली द कमिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1699। दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर फॉर्मलाइज्ड, it they are militarized and converted into warrior disciples। then there is a period of बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, द बैटल ऑफ गुरदास नांगल। ठीक है, हाउ आफ्टर दैट बैटल द मुगल्स एंड द सिख्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड जब ट्रूस पीरियड आता है तो कैसे एक पर्टिकुलर 3 परगनास का एरियाज नवाब को दे दिया जाता है, नवाब कपूर सिंह। नाउ ही क्रिएट्स द जत्थाज ऑफ बूढ़ा दल एंड तरुणा दल। इन्वेजन्स शुरू होते हैं, इन सबको यकीन होता है कि वी नीड अ यूनाइटेड फ्रंट टू फाइट देम, और तो कोई सेव करेगा नहीं। ठीक है, अलग अलग मिसल्स फॉर्म होते हैं विच आर इक्वल्स। दिस इज द गवर्नेंस सिस्टम। रेजोल्यूशंस वगैरह पास होते हैं, सुप्रीम कमांडर एस्टेब्लिश होते हैं। शुक्रचर्या मिसल, चकिया मिसल, महासिंह एंड his son Ranjit Singh, and how Ranjit Singh fighting with his father and later on he captures Lahore which is ruled by Bhangi Misl, and he converts the Sikh confederacy into the Sikh empire in 1801
when he crowns himself as the महाराजा, ठीक है, महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर फ्रॉम 1801 टिल हिज डेथ इन 1839। अब ये महाराजा बन गए सिख एम्पायर के। नाउ ही इज रूलिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स इसके ये सुनो, व्हेन अ मैप ऑफ इंडिया, अब हमें अपने टॉपिक तक भी तो पहुंचना है, विच इज द ब्रिटिशर्स, हाउ दे आर कमिंग इन टू द पिक्चर। ठीक है, अभी तक तो वो चल रहे थे, सबसे फाइट कर रहे थे, दे आर फाइटिंग माइसोर, ठीक है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर, देखो यहाँ पर हमने एक ईयर की बात करी, ठीक है, 1799। इस तरफ से रंजीत सिंह लाहौर को कैप्चर करते हैं, एंड उस तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किसको, मैसूर यानी टीपू सुल्तान को डिफीट करती है। ठीक है, तो श्रृंगपट्टनम को वो कैप्चर कर लेती है, फाइन। तो वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। अब पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज को समझना कि रंजीत सिंह को ना उनके जो कार्टोग्राफर होते हैं, जो मैप्स प्रिपेयर करते हैं, वो उनको एक मैप शो करते हैं ऑफ द रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है, जहां पर पंजाब स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि भाई ये अपना सिख एम्पायर है, ठीक है। और कार्टोग्राफर ने ना कुछ यहां पर ऐसे, दिस इज द सतलुज रिवर, ठीक है, ये वाला एरिया था। अब इस एरिया में ना कार्टोग्राफर ने रेड कलर से बहुत सारी वो एरियाज को शो कर रखा था। एंड रंजीत सिंह अपने ना कार्टोग्राफर से पूछते हैं, भाई ये रेड कलर का जो एरिया है ये क्या चीज़ है। एंड वो बोलता है कि माय लॉर्ड, दीज आर द व्हाट, ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द ब्रिटिश पोजेशंस। अब ये वाली चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये शो करने के लिए कि कैसे जो पंजाब का जो रीजन था उसकी बाउंड्री किसके टच में आ चुकी थी, इट वॉज नियर द बाउंड्री ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस और देयर ऑर्डर, ठीक है। अब 1839 में उनकी डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1839 देयर इज डिसऑर्डर, एक ही वर्ड में समझ लो इसको, दैट देयर इज डिसऑर्डर इन हिज किंगडम, ठीक है। धीरे धीरे आर्मी तो इंक्रीज होती हुई जा रही है अंडर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, क्या इंक्रीज हो रही है, आर्मी इंक्रीज होने लग रही है, पीपल आर गेटिंग रिक्रूटेड, ठीक है। बट उनको कोई भी उनका एबल रूलर उस टाइम पे और लीडर वहां पर प्रेजेंट नहीं है उस इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो दिस इज पर्टिकुलर थिंग। ये अब टाइम पीरियड 1839 का आपने देख लिया कि व्हेन रंजीत सिंह डाइड, ठीक है। अब रंजीत सिंह डाइड हो गए, अब इस एरिया में और कौन काम कर रहा है, इफ यू हैव सीन द लास्ट लेक्चर, यहां पर प्रेजेंट है सिंध, विच इज कैप्चर्ड बाय द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1843। अब सोच के देखो कि एक तरफ यहां पर पंजाब है, इधर वैसे ही उनके पास ब्रिटिश के पास एरियाज हैं, और यहाँ पर सिंध वाले एरिया में भी अब उनके पास क्या है, द ब्रिटिशर्स आर देयर। कैन यू सी द रिलेशन विच विड बी फॉर्मिंग अप नाउ, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड एक तरफ वी हैव दिस सतलुज रिवर, जिसके एक साइड पर पंजाब इज रूलिंग, एंड दी ऑन द अदर साइड इट इज़ द ब्रिटिश पोजेशंस विच आर देयर, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा टाइम पीरियड ये, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज्ड आर्मी है, ठीक है, अब वो आर्मी, रूलर तो एबल्ड है नहीं, कम्युनिकेशन लेस है, तो वो आर्मी ना सतलुज एरिया को क्रॉस करती है, ठीक है। अब ये वी आर मूविंग इनटू द एंग्लो ब्रिटिश वॉर्स। सतलुज एरिया रिवर को जब उन्होंने क्रॉस करा, उनको लगता था कि ये कुछ टेरिटरीज, ये कुछ गांव भी ना उन्हीं के ही हैं, तो दे बेसिकली क्रॉस दिस सतलुज रिवर। और ब्रिटिश को लगा दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज जब आर्मी इंक्रीज हो रही है, ब्रिटिश की भी यहाँ पर आर्मी और कैंप्स इंक्रीज हो रहे थे, इनका भी यहाँ पर आर्मी और कैंप इंक्रीज हो रहे हैं, एंड मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो आर्मी जब यहाँ क्रॉस करती है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। अब वो एक्ट ऑफ वॉर 1845 टू 46, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो वो होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑफ कोर्स द ब्रिटिशर्स, बिकॉज देर वॉज नो एबल रूलर एंड वो अच्छे से कम्युनिकेटेड यूनाइटेड आर्मी नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स वॉन दिस पर्टिकुलर वॉर,
फाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें शुरू होगी, और इसके कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है, इसके कुछ टाइम के बाद ही, इट वॉज नॉट इवन 2 years, 1848 to 49, इट इज़ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर विच इज़ देयर। फाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड फाइनली जब ये वॉर ख़त्म होता है, उस वॉर के ख़त्म होने के बाद, आई राइट ओवर हेयर, यहाँ पर देख लेना, 1849, ठीक है, द रीजन of the Punjab is annexed by the ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे 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 वो वहाँ पर अपने चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं, हु इज सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, ये नाम याद कर लेना भाई, एक बार नाम याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। ठीक है, उनके हाथ लगता है कोहेनूर। ठीक है, जिसको वो भेज देते हैं ब्रिटेन में टू क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, सो दैट इज द फाइनल एनेक्सेशन 1849। पंजाब इज एनेक्स्ड। बाद में जाके थोड़े टाइम तक तो वो उसको वैसे रूल करते हैं, बाद में जाके द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इज क्रिएटेड एंड अंडर सर जॉन लॉरेंस। फाइन। सो दिस इज द पीरियड दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम 1206। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत एंड द मंगोल इन्वेजन, एंड वी हैव रीच्ड अप टू द पीरियड ऑफ 1850s, जहां पर देर इज फाइनल annexation ऑफ द रीजन ऑफ पंजाब। दिस is the complete story that I was talking about. So you see, now we have seen our complete story. ठीक है, now this was known as the foundational brief or the lecture context and background of what the British and the Sikh Empire. And now we can jump to our next point, which is the flashcards. And this is where the flashcards come into being. इससे पहले हमने पूरी अपनी स्टोरी देख चुके। ठीक है, अब हम क्विकली उन फ्लैश कार्ड्स के पॉइंट्स को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। आपका जो मेजर फोकस है अब वो स्टोरी पर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट रिमेंबरिंग दोज क्विक पॉइंट्स। ठीक है, फटाफट इनको देखते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी है। इफ यू हैव गोन थ्रू द स्टोरी ना, देन दीज आर ईजी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिख कंसोलिडेशन एंड द मिसल फॉर्मेशन पे है। दिस इज द मैप विच इज शोइंग द शुक्र चकिया मिसल। ठीक है, कन्हैया, दिस इज द भंगी मिसल विच वॉज इन द एरियाज ऑफ लाहौर। कब कैप्चर हुआ, कब कैप्चर किया रंजीत सिंह ने? 1799 में। दिस इज द एरिया ऑफ मुल्तान, तो वो भी सिख एम्पायर के अंडर में ही आता था। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया है। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द सिख कॉन्फेडरेसीज और द 12 मिसल्स विच आर टेकिंग केयर ऑफ इट। ठीक है, रिवर्स हमने देख ली थी, दिस इज द इंदस रिवर, दिस इज द झेलम, दिस इज द चेनाब, तो IJC। उसके बाद वी हैव रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब जो ये देखो ब्यास है और ये सतलुज है, इसके जो बीच वाला जो एरिया है ना, इसको जलंधर दोआब बोलते हैं। आगे मेरे को वापस मैप पर ना आना पड़े इसलिए मैं आपको पहले ही इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दैट दिस इज द ब्यास रिवर। ठीक है, एंड दिस इज द सतलुज रिवर। ठीक है, और ये अब जो बीच का जो एरिया फॉर्म होगा, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज नोन एज द जलंधर दोआब। दोआब क्या बोलते हैं? दो आब, मतलब एरिया बिटवीन टू रिवर्स, जैसे तुंगभद्रा दोआब होता है। ठीक है, वैसे जलंधर दोआब। इस एरिया को वैसे हम बिश्त दोआब भी बोल सकते हैं, और जब बिश्त दोआब बोलेंगे ना तो हमारे लिए ईजी हो जाता है इसके नाम को याद रखना, बिकॉज इट इज़ ब्यास एंड सतलुज। और ऐसे ही करके ना सभी रिवर्स के बीच में एक दोआब बनता है। ठीक है, ये बन गया रचना दोआब। ठीक है, ये एक बन गया, ये वाला एक बन गया, तो इनके अलग अलग नाम है। इफ़ यू वांट टू एवर इफ़ यू कम अक्रॉस दीज दोआब्स। ठीक है, तो जलंधर दोआब को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिश्त दोआब। ये वाला हो गया जलंधर दोआब, आगे हमारे काम आएगा, तो इसलिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर एंड। सिख कंसोलिडेशन और मिसल्स के हम पॉइंट्स देखते हैं क्विकली। और देखो,
ट्रस्ट मी, इफ यू लुक एट देम ना, यू विल फाइंड देम कि सारे के सारे आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल स्टोरी दैट यू इन्वेस्टेड फॉर योर लाइफ। देखो, लास्ट ह्यूमन सिख गुरु हु ही वॉज गुरु गोविंद सिंह। ही डाइड इन 1708। हमने पूरा पीरियड देखा था, कब से कब, 1469, गुरु नानक देव जी, 1708 द लास्ट ह्यूमन सिख गुरु। बिकॉज उसके बाद गुरु हैं, लिविंग गुरु हैं, बिल्कुल यस हैं, बट इट इज द लिविंग स्क्रिप्चर। ठीक है। उसके बाद बंदा बहादुर का रिवोल्ट होता है अगेंस्ट द मुगल्स। ही इज डिफीटेड एंड देन किल्ड बाय फरुखशार इन 1715 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटल? चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटल वेयर बंदा बहादुर इज कैप्चर्ड? देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आर क्रिएटेड। बंदई विच इज द लिबरल फोर्स, तत् खालसा विच इज द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स, उन सबको यूनाइट करने की कोशिश की जाती है आफ्टर बंदा बहादुर। ठीक है, अंडर भाई मनी सिंह। तो बंदा बहादुर ने अपना रिवोल्ट करा मुगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट कर लिया। ही इज कैप्चर्ड इन द बैटल ऑफ, अभी भी याद नहीं है, इट वॉज गुरदास नांगल। ठीक है, इट वॉज द बैटल ऑफ गुरदास नांगल 1715। 16 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद अंडर भाई मनी सिंह देर आर टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, बंदाई एंड द तत् खालसा, द लिबरल ग्रुप्स विच आर मोर रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। उनको रीयूनाइट करने की कोशिश की जाती है 1721 में। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट 1748 टू 1799 के एस फैजलपुरिया। ठीक है, कपूर सिंह फैजलपुरिया। नाउ ही ऑर्गेनाइज द दल खालसा, दी बुड्ढा दल एंड द तरुणा दल। ये वाली बात है, ही इज द नवाब। उनको 3 परगना मिले थे। मैंने वहां ज्यादा डिटेल बताई और यहाँ तुम देखोगे इट इज मोर समराइज्ड इन द फॉर्म। ठीक है, 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि तरुणा दल ने, दे हैव कैप्चर्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एरिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटिव सिस्टम, एक गवर्नेंस सिस्टम की बात करी थी। ठीक है, गुरुमात संघ। ठीक है, तो वो है। तो नाउ दीज आर द पॉइंटर्स विच आर रिलेटेड विद व्हाट, टू द सिख कंसोलिडेशन एंड द मिसल फॉर्मेशन। इससे पहले की स्टोरी भी हमने डिस्कस कर ली है, इसके बाद की भी कर ली और इन पॉइंट्स की भी कर ली। एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा देख लो, सो दैट अगर आपसे इफ यू गेट दिस पर्टिकुलर स्टिमुलस कि यार सिख कंसोलिडेशन, तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद आनी चाहिए। वन थिंग इज गुरु गोविंद सिंह 1708, देन इट वॉज बंदा बहादुर टिल 1716, बैटल ऑफ गुरदास नांगल। ठीक है, देन बंदाई एंड तत् खालसा अंदर भाई मनी सिंह, नवाब कपूर सिंह, formation of Dal Khalsa, which was the united army because of the invasions, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर चीज़ें याद है। सी दिस इज हाउ इजीली वी कैन गो थ्रू वंस वी आर डन विद द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 12 मिसल्स के अंदर, विच वॉज वन ऑफ द मिसल, इट वॉज द शुक्र चकीय मिसल। ठीक है, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस? महासिंह। ठीक है, हु वॉज द लीडर? ही वॉज महासिंह। एंड उनके महासिंह के सन ही वॉज रंजीत सिंह। तो वो इसको करने लग रहे हैं। दिस इज द एरिया ऑफ पंजाब। दिस इज द एरिया ऑफ पंजाब, सी हाउ बिग इट इज। ठीक है, ये वाला एरिया, भाई ये वाला एरिया किस चीज का है? ये, दिस इज द एरिया ऑफ सिंध, जो 1843 में कैप्चर हो जाता है बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ, एंड यहां पर है विच इज द दुर्रानी एम्पायर। क्लियर है यहां तक? इज इट ओके टिल हेयर? ठीक है, रंजीत सिंह के और शुक्र चक्य मिसल के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड? आई डोंट थिंक स्लो चलना है, तो आई कैन गो दैट। रंजीत सिंह, ही वॉज सन ऑफ महान सिंह और महासिंह। ही वॉज द लीडर ऑफ द शुक्र चक्य मिसल, SML, शुक्र चक्य मिसल। ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799। किससे कैप्चर्ड करा था? फ्रॉम विच मिसल ही कैप्चर्स लाहौर? इट वॉज द भंगी मिसल। ही क्रिएटेड अ यूनिफाइड सिख एम्पायर। उसके वो मोनार्क बनते हैं इन 1801। गॉट इट? ही इज द महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर। ही वॉज डिफीटेड एंड कॉन्कर्ड। ये जो पूरा का पूरा सिख एम्पायर है, इट वॉज डिफीटेड एंड कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, 1849। 2 ही तो वॉर देखे हैं अभी हमने। एक तो कौन सा है, 1845-46 का है, और दूसरा 48-49 का। दीज आर द 2 मेजर वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर। ये तो याद रहेगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 1805 में लाहौर को तो पॉलिटिकल कैपिटल बनाए रखते हैं, ठीक है, एंड अमृतसर इज कंसिडर्ड एज द रिलीजियस कैपिटल। दीज आर द पॉइंटर्स विच आर रिलेटेड विद रंजीत सिंह एंड शुक्र मिसल। अगर याद नहीं हुए हैं, पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट लर्न देम। ये वो चीज़ें हैं जो लास्ट में इन दी एक्टिव रिकॉल सेशन, ठीक है, आपको याद करनी होती है। स्टोरी याद नहीं करनी। स्टोरी तो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंटर ना आपके दिमाग में फिट हो जाए विदाउट एनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। सिख एम्पायर विच वॉज क्रिएटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन दोनों को देखते हैं, इसके पॉइंट्स की डिटेल को देखते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, during this Sindh session or the Sindh lecture or the British and the Sindh, we talked about the agreement of Tilsit। तिलसित के एक एग्रीमेंट की बात कर रही थी, और ट्रीटी ऑफ तिलसित, जहां पर नेपोलियन वॉज कॉन्टेक्टिंग रशिया प्रूशिया। एक कंबाइंड फ्रांस रशिया का इन्वेजन ब्रिटिश को लगा कि इंडिया पर हो सकता है, ऐसा लगा था। इसलिए इंडिया के अंदर 1807 से 1813 तक हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही तो बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे उस टाइम पे। हु इज द गवर्नर जनरल? ही इज लॉर्ड मिंटो, ठीक है। चलो देखते हैं। 1807 में मिंटो एक डेलीगेशन भेजते हैं टू लाहौर। लाहौर किसकी कैपिटल है? सिख एम्पायर की। किसके अंदर में? चार्ल्स मेटकाल्फ। लाहौर में वो अपना डेलीगेशन भेजते हैं क्योंकि उनको डर है एक फ्रैंको रशियन इन्वेजन का। क्योंकि तुम देखोगे, ये अफगानिस्तान का एरिया, सिंध का एरिया, सिंध में भी एक डेलीगेशन गया था, ये पंजाब का एरिया। तो ब्रिटिश और फ्रांस रशियन कॉम्बिनेशन के बीच में यही तो एरियाज हैं, ठीक है। तो दे सेंट अ डेलीगेशन टू पंजाब एज वेल, ताकि फ्रांस और रशिया के इन्वेजन को सीरियसली लिया जा सके और उसको काउंटर करने की प्लानिंग वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज साइन इन 1809। डेलीगेशन भेजा किसके अंडर में? चार्ल्स मेटकाल्फ, ठीक है। रिवर सतलुज को एज अ बाउंड्री लाइन बना दिया जाता है बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख नेशन। क्या करा जाता है कि देखिए, सिख एम्पायर में एक डेलीगेशन गया लाहौर में अंडर चार्ल्स मेटकाल्फ, एंड व्हाट गोज देयर इज कि हम सतलुज को एज अ बाउंड्री रखेंगे बिटवीन द सिख एम्पायर ऑन वन साइड, सॉरी, बिटवीन द, दिस इज द रिवर सतलुज, ठीक है, दिस विल बी द सिख एम्पायर, ठीक है, एंड दिस विल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोजिशंस, ठीक है। सतलुज इज नाउ डिसाइडेड एट द बाउंड्री। किस ट्रीटी के अंदर में? अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब धीरे 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 जैसे आगे चीजें होती जाती हैं, अब जो फ्रांस और रशिया का कंबाइंड इन्वेजन था, वो तो नेपोलियन की डेथ वगैरह के बाद तो वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब कोई डर नहीं था इनको इस चीज का। बट बाद में जाने के बाद, ठीक है, 1830s के टाइम पीरियड पे अब उनको डर था रशियन इन्वेजन का, सिर्फ और सिर्फ रशियन इन्वेजन का, कि रशिया उस टाइम पीरियड में अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। अब उनको नेक्स्ट डर है। सो नाउ दे साइन अ ट्रीटी विद, they sign a treaty known as the Tripartite Treaty of 1838। ट्राईपैटाइट ट्रीटी को वो लोग साइन करते हैं। ट्राईपैटाइट ट्रीटी में, अगर इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज की बात करी थी। ऑन वन साइड वॉज शाह शुजा, ठीक है, ऑन वन साइड वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ऑन द थर्ड साइड इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह ऑफ द सिख एम्पायर, ठीक है। ये तीन, ही वॉज द फॉर्मर रूलर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इन तीनों ने ट्रीटी साइन करी विच इज द ट्राईपैटाइट ट्रीटी ऑफ 1838, ठीक है। ट्रीटी के अंडर में कि कैसे सिख एम्पायर अपने सिंध के साथ जो वो है मीडिएशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे, ये सब चीज़ें थी। सो दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशंस टू काउंटर द रशियन इन्वेजन,
ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स रंजीत सिंह पास्ट अवे इन 1839। तो रंजीत सिंह वॉज द फर्स्ट महाराजा एंड द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर फ्रॉम 1801 टू 1839। गॉट इट? ये वाला अपना पार्ट क्लियर हो गया। नाउ 1839 में आ चुके हैं, ठीक है, कहां पर आ चुके हैं? 1839 में। अब हम चलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की तरफ। महाराजा रंजीत सिंह के, आई यूज द पेन, इफ आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? एक वर्ड में बताया था, देर वॉज डिसऑर्डर इन द सिख एम्पायर। करेक्ट है, डिसऑर्डर इन द सिख एम्पायर। अलग अलग उनकी आर्मी इंक्रीज हो जाती है, वो आर्मी के ज़्यादा एबल लीडर्स नहीं हैं, देर इज़ नो कंसोलिडेशन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो कुछ भी चीज़ नहीं है। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड ट्रूप्स मूवमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर आर्मी का सेक्शन किसको, सतलुज रिवर को क्रॉस कर देता है। एंड इफ यू रिमेंबर, एक ट्रीटी हुई थी, कौन सी ट्रीटी हुई थी, अब उसका नाम बताओगे, जिसके अकॉर्डिंग सतलुज रिवर वॉज सीन एज द बाउंड्री। ट्रीटी कब हुई थी? 1809 में। 1809 में हुई थी ट्रीटी, यस और नो? ओके, क्या नाम था ट्रीटी का? इट वॉज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सतलुज रिवर वॉज सीन एज द बाउंड्री। अब वो एक आर्मी के एक ग्रुप ने उस ग्रुप को क्रॉस कर दिया अपने कुछ विलेजेस को कैप्चर करने के लिए, एंड दिस लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। वैसे भी होना था, क्योंकि वहां आर्मी बढ़ रही है, लीडर्स नहीं है, यहां पर ब्रिटिशर्स अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, उधर रशियन इन्वेजन का खतरा है, वॉर वैसे भी होना था। दिस वॉज द इमीडिएट पॉइंट विच स्टार्टेड द वॉर। तो हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। देखो, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो पोज करके इन पॉइंटर्स को याद कर लेना। आई एम टेलिंग यू, कभी इस चीज को तुम मजाक में ऐसे देख रहे हो कि ठीक है हाँ हो गया, उससे नहीं, लर्न करना जरूरी है भाई। करोगे ना? प्रॉमिस है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर याद रखना, 1845 टू 46। सिख आर्मी सतलुज रिवर को क्रॉस करती है 45 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, क्योंकि ब्रिटिश तो जीत जाते हैं इस पर्टिकुलर वॉर को। अब देखो, अब ध्यान देना इस चीज पे, दिस इज द ट्रीटी ऑफ लाहौर विच इज साइंड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, सतलुज रिवर एज द बाउंड्री बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश। 1845 में बाउंड्री क्रॉस की, एक्ट ऑफ वॉर समझा गया, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 45 टू 46। 46 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 46। क्या हुआ लाहौर की ट्रीटी में? व्हाट आर द पॉइंटर्स विच आर रिलेटेड? वॉर इंडेमनिटी ऑफ 1 करोड़। डियर गॉड, 1 करोड़! 1846 में ब्रिटिश कह रहा है 1 करोड़ रुपए दो। महाराजा रंजीत सिंह तो है नहीं, तो एम्पायर वैसे ही डाउनग्रेड हो रखा है। और क्या दो? जलंधर दोआब समझाया था, ब्यास और सतलुज रिवर के बीच वाला एरिया, ऑल्सो नोन एज जलंधर दोआब, ऑल्सो नोन एज द बिश्त। ठीक है, बिश्त दोआब। दुलीप सिंह, जो कि अभी इन्फेंट स्टेज में थे, ठीक है, वो बहुत ही छोटे थे, ठीक है, उनको रूलर बना दिया जाता है। और आर्मी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उस आर्मी की स्ट्रेंथ को बोला जाता है कि आप लिमिटेड रखेंगे। ये किसके टर्म्स हैं? दीज आर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब देखो, क्या ये 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी दी जा सकती है? नहीं। तो ब्रिटिश उस पैसे को रिकवर करने के लिए व्हाट दे विल डू इज, दे विल टेक द एरियाज ऑफ कश्मीर विच वर अंडर, दे वर अंडर द सिख एम्पायर। कश्मीर को लेंगे और गुलाब सिंह को सोल्ड कर देंगे फॉर 75 लैक्स। अब ध्यान देना, हु वॉज दिस गुलाब सिंह और महाराजा गुलाब सिंह? ही वॉज वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द सिख आर्मी। वो ब्रिटिशर्स की साइड हो जाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, एंड बाद में ब्रिटिश उनको कश्मीर का एरिया सोल्ड कर देते हैं फॉर 70। ब्रिटिश के पैसे पूरे हो गए, और गुलाब सिंह की जो लॉयल्टी थी उसके बदले उनको क्या बना दिया गया? महाराजा ऑफ कश्मीर। वहां पर गुलाब सिंह अपनी, ठीक है, डोगरा डायनेस्टी को
एस्टेब्लिश करते हैं। सो नाउ महाराजा गुलाब सिंह, ही हैज गॉट कश्मीर फॉर हिज लॉयल्टी इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, अब इतनी बड़ी वॉर इंडेमनिटी देनी है। नाउ हु इज ऑन द थ्रोन ऑफ द सिख एम्पायर? ही इज द लिटिल दुलीप सिंह। ठीक है, और उनकी एज अ रीजेंट, ठीक है, उन वो तो अभी छोटे हैं, वो तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो राजमाता के रूप में इट इज रानी जिंदन। ठीक है, रानी जिंदन। तो अब वो प्रेजेंट है, वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने लग रही हैं। ठीक है, शी वॉज द यंगेस्ट वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। हो गया हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंड नाउ दिलीप सिंह इज देयर, ट्रीटी ऑफ लाहौर इज बेसिकली साइंड। अब आगे चलते इस चीज़ को समझते हैं। नाउ देर इज अनदर ट्रीटी विच इज रिटन, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो चुका है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो चुकी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1809, सतलुज रिवर बाउंड्री डिसाइड हो चुकी है। तो हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर देख लिया, हमने ट्रीटी ऑफ लाहौर देख लिया। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आती है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ना इस चीज को समझते हैं, वेयर इज दिस ट्रीटी कमिंग फ्रॉम? सबसे पहले तो ये याद रखो कि लाहौर वाली ना मार्च 1946 में हुई थी, 1946 के स्टार्टिंग वाले पीरियड में। अब बैरोवाल ट्रीटी को देखना, ये होगी दिसंबर, हमने यहां क्या बोला, आई थॉट आई सेड 1946, इट वाज 1846, राइट ना? हाँ ठीक है, तो 1846 मार्च वाले पीरियड में, दिसंबर 46 में ट्रीटी साइन होते हैं, ट्रीटी ऑफ बैरोवाल। एक वॉर हुआ है, वाई आर द मल्टीपल ट्रीटीज बीइंग साइन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई मार्च 1846 में, उसके बाद देर वर नंबर ऑफ देर वॉज डिससेटिस्फैक्शन इन द सिख एम्पायर। पीपल स्टार्टेड रेबिलियन, दे स्टार्टेड रेड्स एंड एवरी केओस सा हो गया पूरा का पूरा, बिकॉज दे वर डिससेटिस्फाइड ओवर द कश्मीर इशू, कि आपने उन महाराजा को वो कैसे दे दिया, दैट वाज नंबर वन। एंड रेबिलियन स्टार्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिख एम्पायर। ब्रिटिशर्स डोंट लाइक दिस, अगर वो एरिया स्टेबल नहीं रहेगा तो हाउ दे विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सेकेंड, इस ट्रीटी की वजह से, इस ट्रीटी की वजह से रानी जिंदन हु वाज अ रेजेंट, शी वाज रिमूव्ड। ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद, ठीक है, गुलाब सिंह को कश्मीर गया था, लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन था उस चीज को लेके, एक आक्रोश था लोगों के मन में, देवर वेरी एंग्री अबाउट इट। ठीक है, सेकेंड, there were different rebellions which occurred after that particular period. तो ब्रिटिशर्स साइन अ डिफरेंट ट्रीटी विच इज द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। बिकॉज अगर आपको पता है, दिलीप सिंह को तो महाराजा बना दिया गया था, एंड हिज मदर, ठीक है, रानी जिंदन वॉज रूलिंग एज अ रीजेंट। ठीक है, जब भी कोई रूलर छोटा होता है उसकी राजमाता उसको वो करती है। ठीक है, बाहुबली का ऐसे रेफरेंस याद रखो, राजमाता शिवगामी देवी। ठीक है, तो दूसरी ट्रीटी साइन होती है आफ्टर रिमूविंग दीज रेबेलियंस। ठीक है, और उस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ बैरोवाल विच इज 1846, इस ट्रीटी ने रानी जिंदन को रीजेंट की पोजीशन से ही रिमूव कर दिया, बिकॉज दे थॉट कि रानी जिंदन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है? रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस एंड द काउंसिल ऑफ 8 सिख सरदार्स आर क्रिएटेड। कि दुलीप सिंह तो खुद से कर नहीं पाएगा, बिकॉज ही इज टू स्मॉल फॉर दैट थिंग, वो स्मॉल है, इज एट वे वेरी यंग एज, वो नहीं कर पाएंगे। हमने रानी जिंदन को, ठीक है, कंप्लीटली एज अ रेजेंट रिमूव कर दिया। हु विल टेक केयर ऑफ द सिख एम्पायर? नाउ द क्वेश्चन इज दिस। तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड इज दे सेंट देयर ओन रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ओवर देयर। हेनरी लॉरेंस एक काउंसिल ऑफ 8 सिख सरदार से सिख एम्पायर को कंट्रोल करेंगे आफ्टर द 1845-46 पीरियड, मतलब बेसिकली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जो दिसंबर 1846 में साइन हुई थी। कौन करेंगे? हेनरी लॉरेंस। इनके अंडर में आएंगे 8 सिख सरदार्स की एक काउंसिल, एंड दिस विल बी रूलिंग द एरियाज ऑफ द सिख एम्पायर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। रानी जिंदन इज आउट ऑफ द पिक्चर, दुलीप सिंह इज टू, हेनरी लॉरेंस विद द काउंसिल ऑफ 8 सरदार्स आर रूलिंग द सिख एम्पायर। प्रॉब्लम्स होनी है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होनी है। ठीक है, एंड देयर विल बी सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ज्यादा टाइम तक वो जो काउंसिल है वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द सेकंड एंग्लो? सबसे पहले तो डेट याद रखो, 48 to 49, 2 ही साल के अंदर हो गया।
ओके, नाउ व्हाट वर द सिक्स रिजेंटमेंट, किस चीज पर गुस्सा थे? देवर एंग्री फॉर द ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद साइन हुई थी। सेकेंड ट्रीटी जो दिसंबर में साइन हुई थी, द ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल। सेकेंड, जो उन्होंने रानी जिंदन को एज अ रेजेंट रिमूव किया था और उनको एग्जाइल में भेज दिया था, दिस वॉज ऑल्सो एडेड वन ऑफ द इश्यूज। ठीक है, अब जो पूरा का पूरा सिख एम्पायर था ना, ये सिख एम्पायर है और द पंजाब एम्पायर, इसका एक पर्टिकुलर एरिया था विच वॉज द एरिया ऑफ मुल्तान। मुल्तान वैसे इंडिपेंडेंस चाहता था, सेंट्रल अथॉरिटी काउंसिल्स आ गए ना वहां, वो डिक्रीज होने लगी। सेंट्रल मुल्तान के गवर्नर ने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड अ रिवोल्ट। एंड इंडिया में अब हैं डलहौजी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। डलहौजी का क्या फाइनल रिएक्शन रहता है, यार दिस इज टू मच एज अ मिस गवर्नेंस विच इज देयर, लेट्स फाइनली कैप्चर द एरियाज ऑफ पंजाब। डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स होते हैं भाई। द बैटल ऑफ रामनगर, चिलिनवाला, गुजरात। गुजरात इट इज अ टाउन इन पंजाब ओनली, ठीक है, जैसे हैदराबाद का हमने डिस्कस करा था सिंध वाले एरिया में, तो दिस इज गुजरात। नाउ देर इज अ फाइनल सरेंडर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द सिख आर्मी एट रावलपिंडी। तो डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स हुए, कौन कौन से, रामनगर, चिलिनवाला, गुजरात, एंड फाइनल सरेंडर एट रावलपिंडी। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, नाउ इट इज कंप्लीटली एंडेड 1848 टू 49। स्टार्टिंग वाले में ट्रीटी ऑफ लाहौर और बैरोवाल हुई थी, फिर रानी जिंदन का इशू, मुलराज हु वाज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान, उसके रिवोल्ट की वजह से ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर तो खत्म हो गया ना भाई, इट हैज एंडेड। व्हाट हैपेंड टू पंजाब आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखो, दिलीप सिंह हु वाज देयर, यंग से थे, उनको तो सबसे पहले ब्रिटेन भेज दिया जाता है एग्जाइल में। तो नाउ आफ्टर दिलीप सिंह देर इज नो महाराजा फॉर सिख एम्पायर। रानी जिंदन को अंडर ट्रीटी ऑफ भैरोवाल वैसे ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, वो जो काउंसिल जो रूल कर रही थी अंडर हेनरी लॉरेंस एंड द काउंसिल ऑफ एट सरदार्स, उन सब के साथ क्या होता है, नाउ अ 3 मेंबर बोर्ड विल गवर्न पंजाब। हेनरी लॉरेंस और जो काउंसिल ऑफ एट सरदार्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उस 8 काउंसिल की जगह क्या आता है, इट इज अ 3 मेंबर बोर्ड विच विल रूल द रीजन ऑफ पंजाब, और दे विल गवर्न द रीजन ऑफ पंजाब, नंबर 1। सेकेंड, ये 3 मेंबर बोर्ड में थे कौन, जो हेनरी लॉरेंस काउंसिल को कर रहे थे वो तो थे, उनके ब्रदर थे जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स मेंसल। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेंसल। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ टाइम के लिए बोर्ड ने इसको गवर्न करा, द रीजन ऑफ पंजाब, एंड फाइनली इन 1853 दिस बोर्ड इज नलिफाइड एंड पंजाब इज प्लेस्ड अंडर द चीफ कमिश्नर हु इज जॉन लॉरेंस। ये हमने अपनी स्टोरी का लास्ट पॉइंट डिस्कस करा था कि कैसे कैसे 1849 में, 1848-49 में सेकंड बैटल होता है, 3 मेंबर बोर्ड आ जाता है। अब वो 3 मेंबर बोर्ड जो होता है उसको वो गवर्न करता है कुछ टाइम के लिए, एंड फाइनली 1853 में वो बोर्ड को हटा दिया जाता है, एंड जो पंजाब का जो रीजन है, ठीक है, अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रोविंस बन जाता है अंडर द चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस। एंड दिस is the end of the Punjab region, and it is finally annexed by the East India Company. It is under the consolidated power of the British East India Company. ठीक है, so can you see we started from the Delhi Sultanate, we saw the establishment of Sikhism as a religion, how it got militarized, how it moved further, the 10 gurus, the 11th guru, Guru Granth Sahib, militarized, Banda Bahadur, नवाब कपूर सिंह, द फॉर्मेशन ऑफ दल खालसा, द मिसल फॉर्मेशन, उसके बाद शुक्र चक्य मिसल, महान सिंह, रंजीत सिंह, एंड फाइनली रंजीत सिंह डेथ इन 1839, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, the formation of board, the board being nullified, and the chief commissioner province under Sir John Lawrence. This was the complete chapter.
I hope you have got everything that you need. Now comes the time to actively recall what you have studied. Now we'll take just quickly few minutes to actively recall what we have already studied. Let's start and take this percentage to 100%. ठीक है, you can pause the video, remember the facts if you want to, and let us start with it. सिख कंसोलिडेशन के और मिसल के सबसे पहले तो फैक्ट्स को याद करो. ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स रिलेटेड विद दीज. ठीक है, कि सिख कंसोलिडेशन कैसे हुआ था, 12 मिसल्स थे, किस एरिया में रूल कर रहे थे, गवर्नेंस सिस्टम याद है गुरुमात से, उस सिस्टम को याद करो. सेकंड, रंजीत सिंह फादर, हु वाज द फादर, हाउ ही टुक लाहौर, सिख एम्पायर कब एस्टेब्लिश होता है, पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, रिलीजियस कैपिटल क्या है. ठीक है, तो नाउ यू हैव फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, वेरी गुड. ठीक है, तो सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच क्या होता है, लॉर्ड मिंटो का डेलीगेशन होता है, किसको भेजते हैं, रिमेंबर द नेम. क्या ट्रीटी साइन होती है टू एस्टेब्लिश सतलुज एज द बाउंड्री बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, वो ट्रीटीज वगैरह याद रखना. ओके, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. अगर यहां तक याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो मेरे याद किया करो उसको ड्यूरिंग द वीडियो. ठीक है, ये जो तुम 1.5x पे 2x पे 100x पे चला देते हो ना, पता नहीं कि पिप 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 ऐसी आवाजें आएंगी. ठीक है, उसको आराम से चलने दो, 5-10 मिनट का ही गैप होगा, दुर्घटना से देर भली. हाँ, ठीक है, उस चीज के अकॉर्डिंग चलो. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सबसे पहले तो कब होता है, 1845-46. वेरी गुड. दो ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 1846 एंड सेकंड द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल विच इज दिसंबर 1846. वेरी गुड. तो मतलब हैं कुछ चीज़ें. गुलाब सिंह याद है, गुलाब सिंह कश्मीर 75 लाख वॉर इंडेमनिटी. वेरी गुड. ट्रीटी ऑफ भैरोवाल दिसंबर 1846, रानी जिंदन को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, तो यू हैव सफिशिएंट आइडिया अबाउट इट. ठीक है, एंड दैट 8 काउंसिल सरदार्स हेनरी लॉरेंस. गुड. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. नाउ व्हाट वी नो अबाउट द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, एक तो ईयर 48-49. ठीक है, 6 को वो कंप्लीटली रिमूव करने की उसमें बात है. रानी जिंदन का इशू है, गवर्नर ऑफ मुल्तान वगैरह वो सब पॉइंटर्स हैं. ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर, बोर्ड बनाया जाता है, 3 मेंबर बोर्ड. ठीक है, तीनों नाम को याद रखो. 3 मेंबर बोर्ड कौन कौन थे, हेनरी, जॉन लॉरेंस, थर्ड वन चार्ल्स मेंसल. वेरी गुड. बोर्ड नलीफाई होता है 1853 में. ठीक है, एंड फाइनली अंडर द चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस, एंड this is the annexation and the consolidation of the Sikh Empire by the British East India Company. I hope you've got everything that was needed, and I hope to see you in the next lecture. Till then, keep on revising. एक बार देखते हो आराम से देखा करो, सेकेंड टू थर्ड टाइम यू वॉच एट एट अ स्पीड, हाफ एन आवर में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग बाय हार्ट पॉइंट बाय पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ फ्लैश कार्ड्स इज, दिस इज व्हाट एक्टिव रिकॉल इज. Try to do the other subjects like this only, and I hope to see you in the list. ठीक है, I'll see you in the next lecture. Till then, take care, keep learning.